हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय निशा मंगला। आज की हमारी जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट, लेमन ब्रॉट। इट वाज रिटन अबाउट 1205. Lehman's poem gives the legendary history of the ancient Britain. The story of Lear and King Arthur also were incorporated in it. Three literary stages of Chaucer in sequence are French, Italian, English. Chaucer's dialect, East Midland dialect. Chaucer's dialect was East Midland dialect. Locke ने क्या बोला था? He found English a dialect and left it a language. And Spencer ने क्या बोला? The well of English undefiled. Who was the leader of Lollard movement? The leader of the Lollard movement was Wycliffe, and he was succeeded by John Purvey. Wycliffe was founder of English prose and as the real originator of the European Protestantism. Important dates: Battle of Agincourt, 1415. Fall of Constantinople, 1453. War of Roses, 1455 to 85. Alexander Barclay, he is important one. The Ship of Fools, he wrote it. A translation of the German work by Sebastian Brand. It is about the Ship of Fools. A satirical portrait of the various kind of foolish men. It is about the satirical portrait of the various kind of foolish men. Utopia. What is Utopia? It is a true prologue to the Renaissance, the first monument of the modern socialism, and it was translated from Latin into English by Ralph Robinson in 1551. Latin की spelling गलत है. Thomas Watt introduced sonnet into English. Introduced Terza Rima. 96 love poems appeared in it. Posthumously in Total's Miscellany, which was written in 1557. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए टोटल्स मिसलेनी का एक और क्या बोलते हैं, उनको सोनेट्स बोलते हैं. फोर साइकिल्स कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. द चेस्टर साइकिल 25 प्लेस, कोवेट्री साइकिल 42 प्लेस, वेकफील्ड साइकिल्स 31 प्लेस और यॉर्क साइकिल 48 प्लेस. प्लीज इसको जॉट डाउन कर लीजिए साइमल्टेनियसली. हेवुड रोड द 4 P's. वो स्टैंड किसके लिए करते हैं? पैल्मर, पेडलर, पार्टनर, पोथकरी. राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 P's किसको बोल रहे हैं. गॉर्बेटक वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अनदर नेम क्या है? फेरिक्स एंड पोरेट्स. Blank verse है, tragedy है. The first 3 acts are by Thomas Norton and last are by the Sackville. तो ये गॉर्बेटिक किसने लिखी है? थॉमस नॉर्टन एंड सैकविले ने कॉम्बिनेशन में लिखी है. Then the Shepherd Calendar was written by the Edmund Spenser and it was the first major poetic work which was published in 1579. तो आपको ईयर याद होना चाहिए कि ये कब पब्लिश हुई थी? 1579 में. The 12 Eulogies of Shepherd's Calendar dealing with such themes as the abuses of the church, Collins' shed love for Rosalind, praise for Queen Elizabeth and encomium to the rustic shepherd's life are title for the month of the year. तो ये जो नेम है वो मंथ ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग लिखी है. 12 Eulogies and 12 month of years. Then Faerie Queene, very important. ये टोटल 6 बुक में है. 7th जो है वो इनकम्प्लीट है. राइट. बुक 1, जो बुक 1 है दैट इज रेड क्रॉस, नाइट, Holiness. Second book, Guion, Temperance.
मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्टर्स हैं और साथ में बुक का नाम है। बुक 1 का नाम है होलीनेस, जहां पर होलीनेस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रेड क्रॉस नाइट के द्वारा। सेकेंड बुक का नाम है टेम्परन्स, जो ग्योन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड बुक जो है वो है चेस्टिटी, ब्रिटोमार्ट। फोर्थ बुक इज फ्रेंडशिप, इसमें जी मिसिंग है, ट्रायमंड एंड कैम्पबेल। फिफ्थ बुक इज जस्टिस, represented by Article. Sixth book is courtesy, which is represented by Calidon. First prose comedy supposes it was basis of Shakespeare's Taming of Shrew. It was written in 1566. Samuel Daniels referred to him as Daniel's work, referring to him as one of the golden writers of a golden Elizabethan age, whose dictions bear no mark of the time. और ये किसने बोला था इनके बारे में, डेनियल के बारे में? कॉलरिज ने। तो जो सैमुअल डेनियल है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था जिसका नाम है डिफेंस ऑफ राइम। इट वॉज रिटन इन 1602. इट वॉज अ पीस ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क in the English criticism. और ये क्या था? A reply to Thomas Campion's observation in the art of English poesy. तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस ऑफ राइम किसने लिखी है, कब लिखी है और किसको रिप्लाई में लिखी है। 1602 by Daniel, and it was the reply to the Thomas Campion. Thomas Nash, he finished Marlowe's Dido. Picares's novel was written by Thomas Nash, The Unfortunate Traveler, और उसका सबटाइटल क्या है? The Life of Jack Walton, and it was written in 1594. The Spanish Tragedy, और इसका सबटाइटल क्या है? Hieronymia or Is Mad Again. अब ये जो वर्क है ये क्या है? An Elizabethan Tragedy, and it was written by Thomas Kidd. Very important tragedy, Spanish tragedy by Thomas Kidd, and it was written between 1582 and 1592. Again, very important thing about the Spanish tragedy is it has a play within play. ठीक है, जैसे हैमलेट का है play within play, वैसे ही Spanish tragedy का है। The Fountain of Self-Love, और इसका the subtitle of the play, right? Cynthia Erivo by Ben Jonson. The name of the principal character in Walpole or the Fox. Walpole, उसका सबटाइटल है Fox. Walpole Fox है, Mosca Fly है, Voltaire Vulture है, Cardassius Crow है, Corvino the Raven, and they indicate their role and nature. तो जो ब्रैकेट में है वो उनका नेचर है, ठीक है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या उनका नेचर है। आई अगेन रिपीट, वॉलपोल फॉक्स, मॉस्का फ्लाई, वॉल्टेयर वल्चर, कॉर्डेशियो क्रो एंड कॉर्विनो द रेवन, राइट। डिकेंस ऑफ एलिजाबेथियन एज, अगर आपको पूछा जाए हु इज द डिकेंस ऑफ एलिजाबेथियन एज, ही इज थॉमस डेकर, ठीक है। अब थॉमस डेकर ने क्या लिखा था? अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय द थॉमस हेवुड, राइट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिकेंस ऑफ एलिजाबेथियन एज, तो वो थॉमस डेकर है। अगर आपको पूछा जाए अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, तो थॉमस हेवुड है, ठीक है। और थॉमस हेवुड ने ये जो टेक्स्ट लिखा था, दैट इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी विच वॉज प्रिंटेड इन 1607। किंग जेम्स बाइबल, ठीक है। ये जो किंग जेम्स बाइबल है 1611 में लिखी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और ये टोटल 47 स्कॉलर्स द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। द न्यू अटलांटिस वो फ्रांसिस बैकन ने लिखी थी। इट इज अनफिनिश्ड वर्क, राइट, अ फिलोसफिकल रोमांस मॉडल्ड अपॉन मोर्स यूटोपिया, ठीक है। तो फ्रांसिस बैकन की द न्यू अटलांटिस है वो यूटोपिया के ऊपर मॉडल्ड है।
पीरियड ऑफ मिल्टन पोइटिकल कैरियर, 4 है इसके पोइटिकल कैरियर, कैम्ब्रिज का कॉलेज पीरियड, हॉटन पीरियड, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सी जिसमें इन्होंने प्रोज राइटिंग किया है, पीरियड ऑफ ग्रेट एपिक, ठीक है, द लेटर पोइटिक पीरियड। कॉमस और जो कॉमस है वो क्या है, एक मैस्क है, पेस्टोरल ड्रामा है, और ये कहां पर परफॉर्म हुआ था, लुड्लो कैसल में, ठीक है। और कॉमस जो मिल्टन द्वारा लिखा गया है वो कब लिखा गया था, 1634 में, राइट। लाइसिडास 1637 में लिखा गया था, और वो क्या है, एक एलेगी है ऑन एडवर्ड किंग हु वाज ड्रॉन ऑन अ वॉयज टू आयरलैंड, राइट। अब इनकी जो मिल्टन की जो है ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने जीसस बर्थ के सेलिब्रेशन का लिखा है, एंड ये क्रिसमस के दौरान लिखी गई थी 1629 में, राइट। वॉगन सोसाइटी जो थी वो 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इट्स जर्नल इज Scintilla and it was edited by Annie. Next is Thomas Browne ने क्या लिखा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, रिलीजियो मेडिका। और रिलीजियो मेडिका कब लिखा गया था, 1635 में, बट वॉज पब्लिश्ड इन 1642। और ये क्या है, एक मिक्सचर है रिलीजियस फेथ एंड साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म का। The work is divided into 2 parts relating broadly to God and to man, ठीक है। तो इसमें God और man दोनों को रेफर किया गया है। The first treat of matter of faith, the hostility among the rival sects and religion, and man as a microcosm. Then some important works, John Denham's Copperhill 1642. Isaac Walton, The Complete Angler, 1653. Thomas Hobbes, Leviathan, 1651. Then the Restoration marks the birth of our modern English prose. ये किसने बोला था, The Restoration marked the birth of our English modern English prose? Matthew Arnold ने। अच्छा, The correct school poetry किसको बोला जाता था, Dryden School of Poetry। ये किसने बोला है, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मार्बल, डॉक्टर जॉनसन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोटेशंस जो हैं किन्होंने किसके लिए बोली है। फिर ड्राइडन्स एनस मिराबिलिस 1667, इसका सब्जेक्ट क्या है, इट्स सब्जेक्ट्स आर द डच वॉर एंड द फायर ऑफ लंदन। जो ड्राइडन की ये वर्क है, इसमें मेन जो थीम है, जो सब्जेक्ट चुना गया है, वो है डच वॉर एंड फायर ऑफ लंदन। एस्ट्रिया रिडक्स जो है वो 1660 में लिखी गई थी, और इसमें क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल्स टू रिटर्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ड्राइडन के, और उनके बारे में बता रही हूँ, तो ये भी आप जॉट डाउन करते जाइए साथ साथ। फिर उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द हिंट एंड द पेंथर, 1687 में लिखा गया था। इट इज एन एलिगोरिकल डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिक फेथ। देन एब्सालम एंड अकिटोफल 1685, ये क्या है, एक सैटिरिकल एलेगरी है, जिसमें जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनको रियल करेक्टर्स के साथ जोड़ा गया है। जैसे एब्सालम है ड्यूक ऑफ मैनमोथ, अकिटोफल है शेफ्सबरी, जिमरी है ड्यूक ऑफ बेकिंगहम, डेविड चार्ल्स टू, कोरा ओट्स, शिमी, स्लिंगबी, बेथल, sheriff of London. The poem concludes with a long speech by David. And who is David? Charles II. Jeremy Collier, very important one. The short view of immorality and professions of English stage. ये किसने लिखी थी, जर्मी ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1698 में। इसमें क्या है, अटैक्ड ड्राइडन, वर्चुअली, कंग्रीव, वेनब्रुक, डर्री एंड ऑटवे। एक्चुअली जो जर्मी ने थे वो जो कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको किया था। complaining particularly of profanity in stage dialogue and mockery of the clergy.
जॉन बनियन ने क्या लिखा था? ग्रेस अबाउंडिंग 1666 में। ठीक है, अब ये जो ग्रेस अबाउंडिंग है उसका एक अलग टाइटल भी है, तो पूरा टाइटल बेसिकली इसका क्या है? ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ द सिनर और द ब्रीफ रिलेशन ऑफ द एक्सीडिंग मर्सी ऑफ द गॉड इन क्राइस्ट टू हिज पुअर सर्वेंट। एंड ये क्या है? एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बनियन की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो दैट इज ग्रेस अबाउंडिंग। द पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678। The Pilgrim Progress for this world to that which is to come. ये क्या है? A prose allegory है। First part was published in 1678 and second part was published in 1684 in the form of dream by the author. Bacon again very important writer of this English literature. Bacon's essay are modeled on the essay of Montaigne, right? And Bacon is the author of Nomen Organum, which is very important text. It is a mixture of, इसका quotation है जो ऑफ ट्रूथ में इन्होंने जो essay लिखा था ऑफ ट्रूथ, उसका important quotation है। A mixture of falsehood is like an alloy in the coin of gold and silver, which may make the matter work the better, but it embellisheth it. Miscellaneous, अगर जनरल चीजें पूछ रही हूँ आपसे, let's see how much you know about the English literature. So you have to tell the writer of the following text. My butterfly and elegy, in search of the lost time, no man is an island, Krebs last trip, Billy Butt. तो आपने इनके राइटर्स के बारे में बताना है। So let's check the answer. Robert Frost, Marcel Proust, Thomas Merton, Samuel Beckett, Herman Melville. Next again one. Okay, you have to identify the year in which these texts were written. Madame Bovary, A Dollhouse, Mill on the Floss, Wings of Dove, Life on the Mississippi, A Marriage Proposal, Man and Superman, Jude the Obscure. तो आपको ये ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इनके ईयर्स क्या है? 1857 बाय गस्टवी, 1879 बाय हेनरिक, 1860 बाय इलियट, जॉर्ज इलियट, 1902 बाय हेनरी जेम्स, 1883 मार्क ट्वेन, 1889 एंटन शेकर, 1903 Shaw, and 1895 Thomas Hardy. So this was all for today's video. I hope you like it. If you like it, please subscribe and share.